A new revised one again we have received now to yesterday. All of you have taken your textbook? Yes. Yes. So you can see on the screen, it is shared, page number is 198. 198 page number. Put a cross on the reflex action. ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको कैंसिल कर दो आप, एक टिक कर दो, एक रॉन्ग कर दो, रिफ्लेक्स एक्शन को एक क्रॉस कर दो यहाँ पे. फुल रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट देयर. ठीक है. देन ये जो टेबल है चार्ट 9.15, इसको भी आप पूरा क्रॉस करो. Now come to page number 200. Come to page number 200. Here, this part is deleted. See this last part. Sensory receptors. 9.7. इसको भी एक लाइन ड्रॉ करो. ये नहीं है सेंसरी रिसेप्टर. ये वाला पार्ट, ये छोटा पैराग्राफ, फिर और यहाँ पे कंटिन्यूएशन है, इसको भी आप कट करो. Done? Yes. Yes. 202 पेज नंबर पे आओ. ये तो पूरा नहीं है. फिर आई जो है उसको पूरा 202, आई को पूरा कैंसिल करो. फुल आई को टू नॉट 2 deleted, 203 deleted, full 204 full deleted. मिस ईयर भी डिलीटेड है. हाँ 205 तक पूरा डिलीटेड है. 205 तक पूरा डिलीटेड है. अब 206 पेज नंबर पे आओ. 206 पेज मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है, इसको डिलीट करो. ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, इसी को डिलीट करो. फिर यहाँ से डिसऑर्डर है, ये तो हमने मैंने आपको कल पढ़ाया भी था. डिसऑर्डर है. Yes, understood? Yes, ma'am. यस. Okay. So आई ईयर नहीं है आपको पढ़ने के लिए. सो डिलीटेड पार्ट को छोड़ के अपना यहाँ तक सब पढ़ के हो चुका है. करेक्ट ना? यस. Yes. This table also I've shown you with the help of a diagram. Now we will be starting with the next topic today, that is the disorders we have completed. Now today we will be starting with the chemical coordination. ठीक है. Physical disorders में मैंने आपको ये सारे बताए थे with the help of a diagram also. ठीक है. We have seen about the Alzheimer's patient, we have seen about the Parkinson's patient, everything. ठीक है.
Now let us move on to the next topic, that is the chemical coordination. Chemical coordination. Okay. So just a second. I will share the PPT with you all. Hello, ma'am. Yes, beta. Ma'am, generation of nerve impulse. Yes, I know that. I know. वो है बाकी. I know. ठीक है. Just a second. I know that topic is there in that. वो related नहीं है, वो है. Okay. Now, see, chemical or the hormonal coordination. Let us understand this. So in the higher animals, due to complex body organization, in addition to the nervous coordination, there is a need of a chemical coordination also. Nervous coordination तो अभी हमने देखा ही कैसे impulse travel होता है from one neuron to the other neuron. ठीक है. Only electrical neuron अपना रह गया है, that I will be teaching you at the last also. Let me complete this part in continuation. ये continuation में है ना बेटा, इसीलिए I will complete this part. That is a small topic that I will complete afterwards also. Okay, so हायर एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन तो अभी हमने देखा ही, पर साथ में केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है. केमिकल वर्ड अगर हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स द हार्मोन्स कम्स इनटू द पिक्चर. What are hormones? They are the chemical messengers. They are the chemical messengers secreted by the endocrine glands. Endocrine glands. So basically, this part of the lesson you are going to learn about the different endocrine glands of our body. ठीक है? वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं? ये वाला जो पार्ट है आपके लेसन का बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है. इसमें आपको पढ़ना क्या है बेटा, कि कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो हार्मोन ज्यादा अगर सिक्रीट हो गया तो कौन सी बीमारी होती है, कम सिक्रीट हुआ तो कौन सी बीमारी होती है. दैट्स इट. अंडरस्टूड? सो दिस पार्ट इज वेरी सिंपल दैट वे, बट difficult also at the same time, because you have to memorize all the disorders. आपको उस डिसऑर्डर्स का नाम याद होना चाहिए कि ज्यादा हाइपर सिक्रीशन है तो कौन सा बीमारी, हाइपो सिक्रीशन है तो कौन सा बीमारी. समझ में आया? और उसके सिम्टम्स भी. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ठीक है. Yes. So let us understand this. The cells in the organism, they communicate with each other through the chemical signals. है ना? जैसे हम ऑर्गेनिज्म, we can communicate with each other. अभी जैसे मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, it is because of the speech.
in which my nervous system is helping me, but साथ में my chemical system is also helping me in that, because hormones are also working in coordination. ठीक है. Similarly, if we talk about the ants, ant, अगर आपने कभी ant को observe किया होगा तो वो लोग कितने दूर दूर तक जाते हैं अपना खाना लेने के लिए, बट फिर भी वो अपने घर तक बराबर पहुंचते हैं. कैसे पहुंचते हैं? बिकॉज ऑफ द केमिकल सिग्नल्स. ठीक है, केमिकल सिग्नल्स. केमिकल सिग्नल से वो अपने लाइन में ही बराबर रहते हैं, कितनी भी बड़ी लंबी लाइन होने दो, पर वो अपने बराबर एक के पीछे एक रहते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ अ केमिकल सिग्नल. सिमिलरली हनी बी, हनी बी को आपने देखा है कि कितने दूर दूर तक वो लोग जाते हैं नेक्टर लेने के लिए, और फिर भी अपने हनीकॉम तक पहुंच जाते हैं. कैसे पहुंचते हैं? अगेन बिकॉज ऑफ अ केमिकल सिग्नल. ठीक है, ये तो हो गया बाहर की बात. हम अपने बॉडी के अंदर की बात करते हैं. एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर पाता है. एक सेल को अगर समझो अपने पैनक्रिया को ऑर्डर देना है कि अभी इंसुलिन बनाओ, तो वो उस पैनक्रिया के अंदर जितने भी सेल्स है वो कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन कि चलो अब इंसुलिन बनाने को स्टार्ट करना है. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, दिस हॉर्मोन्स प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी. So depending upon the chemical signals, they have been divided into 4 types: autocrine, endocrine, paracrine and the pheromones. ऑटोक्राइन का मतलब क्या होता है? सेल रिलीजेस सिक्रीशन टू स्टिम्युलेट इटसेल्फ, खुद को स्टिम्युलेट करने के लिए जब सेल कुछ रिलीज करता है. ऑटो मतलब खुद को, सेल रिलीजेस सिक्रीशन टू स्टिम्युलेट इटसेल्फ, खुद को स्टिम्युलेट करने के लिए कुछ बनाना है, इसीलिए सेल अपने आप को ही स्टिम्युलेट कर रहा है. जैसे अभी आपने 11th स्टैंडर्ड में गॉबलेट सेल सुना है, पढ़ा है ना. गॉबलेट सेल सीक्रेट्स म्यूकस. तो जब सेल एक ही सेल है ना, यू हैव लर्न दैट यूनिसेलुलर है गॉबलेट सेल्स. तो जब एक ही सेल अपने आप को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रेट द म्यूकस एंड दैट इज अ गॉबलेट सेल्स, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोक्राइन. समझ में आया? नेक्स्ट, एंडोक्राइन. एंडोक्राइन मतलब जब सेल रिलीजेस सिक्रीशन टू स्टिमुलेट अ डिस्टेंट सेल. डिस्टेंट सेल. अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगी जो आप इस लेसन में भी पढ़ोगे. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप ये टाइम पे यू आर एट अ प्यूबर्टी कंडीशन, प्यूबर्टी एज में आप, एडोलेसेंस एज बोलते हैं इसको. जो टीन एज होता है 13 to 19 का जो एज होता है उसे हम प्यूबर्टी भी कहते हैं और उसे हम एडोलेसेंस पीरियड भी कहते हैं. अब ये पीरियड में आप लोगों के बॉडी में ज्यादा क्या वो सिक्रीट हो रहा है? सेक्स हार्मोन्स बन रहे हैं, बिकॉज गोनाड्स में ओवरी में एग एंड टेस्टिस में स्पर्म तैयार हो रहे हैं. एट द टीनेज कंडीशन में ये सब स्टार्ट हो जाता है ना. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि ब्रेन में होता है, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो सिग्नल देगा. किसको सिग्नल देगा? टेस्टिस और ओवरी को सिग्नल देगा टू प्रोड्यूस द स्पर्म एंड द एग. तो यू कैन सी अ डिस्टेंट ऑर्गन ब्रेन में है और मैसेज किधर दे रहा है? पेल्विक रीजन में दे रहा है. तो डिस्टेंट ऑर्गन हो गया कि नहीं? डिस्टेंस सेल हो गया कि नहीं? तो जब भी कोई सेल अपने सिक्रीशन से दूर के सेल को कुछ ऑर्डर दे रहा है टू सिक्रीट समथिंग टू स्टिम्युलेट, दैट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन. ठीक है, आप इस लेसन में एंडोक्राइन को ही डिटेल में पढ़ोगे. फिर हम बात करते पैराक्राइन. सेल रिलीजेस सिक्रीशन टू स्टिम्युलेट द नेबरिंग सेल, बाजू के सेल, उसको अपने बाजू वाले सेल को स्टिम्युलेट करना है, तो पैराक्राइन. फेरोमोन्स, ऑर्गन रिलीजेस सिक्रीशन. अभी देखो इन तीनों में आपने सेल 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 पढ़ा, ऑटोक्राइन भी सेल पढ़ा, एंडोक्राइन भी सेल पढ़ा, पैराक्राइन भी सेल पढ़ा, पर फेरोमोन्स में क्या पढ़ा आपने? ऑर्गन रिलीजेस सिक्रीशन टू स्टिम्युलेट अदर ऑर्गेनिज्म. सेल की अब बात ही नहीं कर रहे हैं हम, बॉडी के अंदर की बात नहीं कर रहे, बॉडी के बाहर किसी को ऑर्डर देना है, बाहर बॉडी के बाहर किसी को स्टिम्युलेट करना है. जैसे कि मैंने अभी आपको हनी बी का बताया,
Understood all of you? Yes or no? Yes, ma'am. मिस ह्यूमन में वो वाला एग्जांपल बताओ ना, कौन सा वाला बच्चा? फेरोमोन्स का ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग में फेरोमोन्स नहीं होता बच्चा, हम कहाँ फेरोमोन्स रिलीज करते? वी कैन टॉक ना। यस Yes, we can talk na beta. Pheromones are they can be some what to say, कुछ olfactory type कुछ smell होगा, कुछ smell है जिसके वजह से the one ant is attracted to the other ant or the bees are attracted to the honeycomb. ठीक है? यस Pheromones human beings में नहीं होता है. ठीक है? Okay, तो let us see the next slide. So chemical coordination is carried out by ductless gland. Ductless gland जिसे हम क्या कहते हैं? Endocrine gland. Endocrine gland consists of an endocrine system which controls our body activities by means of the chemical messenger. Chemical messenger जो मैसेज लेकर जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स कहते हैं. हॉर्मोन्स. ठीक है? So hormones can be released directly into the blood and carried to all parts of the body. Okay. The message is relayed only to the target organ, which gets stimulated to carry out a specific function. जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकल गया, वो ब्लड में रिलीज हो गया. हाँ, जैसे अभी मैं आपको वो नाम ही बता देती हूँ, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा है. पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन रिलीज कर दिया ब्लड में, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. अब ये ब्लड में रिलीज हो गया गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. अब ये ब्लड के थ्रू तो हमारे हार्ट में भी जा रहा है, हमारे लंग्स में भी जा रहा है, हमारे लिवर में भी जा रहा है, हमारे किडनी में भी जा रहा है, हमारे हर एक पार्ट में जा रहा है. ये ब्लड में ही है ना, तो ब्लड में तो सर्कुलेशन के थ्रू सब जगह घूम रहा है. पर वो अपना एक्शन कहां पर दिखा रहा है? कहां पर दिखा रहा है बेटा? सिर्फ और सिर्फ गोनाड्स में दिखा रहा है. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस. Yes, ma'am. वापस रिपीट कर रही हूँ. पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया? एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड ने गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज कर दिया हमारे ब्लड में. ठीक है, ये डक्टलेस ग्लैंड है, तो डक्टलेस ग्लैंड है मतलब कि ये अपना जो भी सिक्रीशन है ब्लड में रिलीज करते हैं. तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ब्लड में रिलीज हो गया. अब ब्लड तो हमारा सर्कुलेशन में घूम रहा है सब जगह, तो ये जो हार्मोन है वो ब्लड के थ्रू हर एक ऑर्गन की तरफ जा रहा है. लिवर में भी जा रहा है, किडनी में भी जा रहा है, यस, सब पैनक्रिया में भी जा रहा है, गॉल ब्लैडर में भी, हर एक जगह जा रहा है. पर कहीं पे भी वो अंदर एक्सेप्ट नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके जो एक्सेप्ट रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोनाड्स में ही प्रेजेंट है. जब ये ब्लड में घूमते घूमते गोनाड तक पहुंचेगा, मतलब बॉयज में टेस्टिस में पहुंचेगा और गर्ल्स में ओवरी में पहुंचेगा, तो ये जो हार्मोन है जो रिलीज हुआ है ब्लड के अंदर, उसके रिसेप्टर्स उस गोनाड्स पे ही प्रेजेंट है. जैसे वो उसको देखेंगे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. समझ में आया मेरी बात? तो ये तो मैंने आपको एक हार्मोन की बात बताई बेटा. ऐसे हमारे बॉडी में एक ही बार में कितने सारे हार्मोन्स घूम रहे हैं. समझ में आया? और हर एक हार्मोन को रिसीव करने वाला उसका उसका ऑर्गन है. समझ में आया मेरी बात? ठीक है. So this is how it is working very specific function. It is having a very specific function. ऐसा नहीं है कि गोनाडोट्रोपिन वाला हार्मोन भूल के पैनक्रिया के पास चला गया, पैनक्रिया ने भूल के उसको एक्सेप्ट कर लिया. तो यू कैन सी दैट अपना बॉडी इज सो परफेक्ट, कभी भी एक भी भूल नहीं करता है वो, जबकि इतने सारे हार्मोन्स एक साथ हमारे ब्लड में फ्लो कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही हार्मोन फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं है. एक ही बार में बहुत सारे हार्मोन्स अपने बॉडी में फ्लो कर रहे हैं, पर कभी भी कोई भी ऑर्गन गलती नहीं करता है. ठीक है. व्हेन वी आर नॉर्मल, व्हेन वी आर नॉर्मल, उस टाइम पे कोई भी ऑर्गन गलती नहीं करेगा कि चलो गलती से हो गया. जैसे आप लोग करते हो ना कोई कोई चीज,
शिट गलती से हो गया, गलती से गिर गया, गलती से ये हो गया, पर अपना बॉडी तो इतना परफेक्ट है कि कभी भी वो गलती से दूसरे वाले हार्मोन को लेगा ही नहीं। ठीक है, अगर वो छोटा सा गलती करेगा तो हमारे बॉडी में बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, now I request all of you to note down the chemical natures of the hormone with an example. So there are different types of hormones. The hormones can be amines also, they can be peptide hormones, सिर्फ पेप्टाइड से बने हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड्स, you know that they are peptide bonds किसमें होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर linked to form a peptide bonds to form a protein. तो सिर्फ पेप्टाइड है, उससे भी हार्मोन बनते हैं, पूरे प्रोटीन से भी हार्मोन बनते हैं, फैटी एसिड डेरिवेटिव्स में भी हार्मोन है, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड मतलब भी फैटी होता है बेटा, वो भी हार्मोन्स होते हैं, और गैस वाले हार्मोन्स भी होते हैं। So this is very, very, very important. I request all of you to write down this in your notebook. Please note down in your notebook. और ये जो आपको एब्रीवेशंस दिख रहा है ना, ये हम पढ़ेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अभी आप ऐसे ही लिखो TSH, FSH, आगे आपको इसका फुल फॉर्म पता चल जाएगा। और लिख के हो जाएगा तो प्लीज लेट मी नो।
None, ma'am. हो गया बेटा सबका लिख के? Yes. Yes, Yes. ma'am. Done, ma'am. ओके ओके। Now, all of you now, just copy this endocrine glands के name. Endocrine glands which do not have duct, therefore they're called as a ductless gland. Their secretion, that is hormones, are carried by blood to the specific organs, that is a target organ. ठीक है? So ये सारे नाम लिखो, ये आपको इस लेसन में पढ़ना है. Done, ma'am. Ma'am, you are on mute.
Yes, you can see this table, beta. So Yes. now what you will be doing, bacha, you will be writing down the gland with the hormone. Gland with the hormone, so that it will be easy for you to understand the further part of the lesson. So please write down this also. Gland with the hormone, gland with the hormones.
Yes, done, childrens. No, ma'am. Done, ma'am. Okay, beta. So now let us understand the properties of hormone. Properties of hormone. The hormone, we know that they are the chemical messengers. Okay, they are the chemical messengers. Effective in very low concentration. थोड़े amount में भी भले secrete होगा पर उसका effect बहुत ज्यादा होता है. They are either stimulators or inhibitors. इसका मतलब क्या है बेटा? या तो वो कोई चीज को स्टिमुलेट करेंगे कोई हार्मोन को बनाने के लिए, या तो फिर वो कोई हार्मोन को रोकेंगे कि बस हो गया, इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए. समझ में आया? क्योंकि अगर हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, कम सिक्रीट होगा तो भी प्रॉब्लम होगा. तो उसका एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट. सो उतना सिक्रीट होने के बाद यही हार्मोन्स इनहिबिट भी करते हैं, मतलब कि रोकते भी हैं. तो दोनों काम करते हैं, हार्मोन स्टिमुलेट भी करते हैं और इनहिबिट भी करते हैं, रोकते भी हैं. They are metabolized after their function is over, so cannot reuse. This is also a very important point. एक बार उस हार्मोन का काम हो गया तो वो खुद ही अपना बॉडी उसे मेटाबोलाइज कर देता है, हाँ, खत्म कर देता है, उसको वापस रीयूज नहीं किया जाता है. Their secretion is regulated by positive or negative feedback mechanism. What is positive and negative? Positive मतलब जब अपने बॉडी को चाहिए, और नेगेटिव मतलब जब उस बॉडी अपने बॉडी को नहीं चाहिए उस हार्मोन को. So that is what is called as a positive feedback and a negative feedback.
जैसे अगर मैंने एक दिन बहुत ज्यादा शक्कर खा लिया या शक्कर वाली कोई मिठाई खा ली, ठीक है, जैसे अभी रक्षाबंधन था, आपने बहुत ज्यादा मिठाई खा ली भाई लोगों ने, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका बॉडी बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाएगा। पर समझो अगर आपकी बॉडी ने थोड़ा भी शक्कर नहीं खाया, पूरे दिन में आपने उपवास किया है, ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक होगा। समझ में आया? तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन, कि जब जरूरत है तो ज्यादा बनाना है, जब जरूरत नहीं है तो रोक देना है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ स्टिमुलेटर एंड इनहिबिटर। Okay, so mechanism of the hormone action. तो हार्मोन आर रिलीज, अगेन द सेम थिंग, दे आर रिलीज इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही छोटे क्वांटिटी में रिलीज होता है, बट उसका इफेक्ट बराबर उस टारगेट ऑर्गन पे होता है। हर एक हार्मोन का अपना खुद का एक टारगेट ऑर्गन है। जैसे इंसुलिन का शुगर के ऊपर काम करना, ठीक है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का गोनाड्स पे काम करना, समझ में है? Now, hormone binds to the receptors, which may be cell membrane or intracellular. अब इसका मतलब क्या है? सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते। क्या बताया मैंने? कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, अभी आपने टाइप्स ऑफ हार्मोन्स देखा ना बेटा, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स अमाइंस हैं, कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स है, कुछ प्रोटीन हार्मोन्स है, कुछ फैटी है, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स है। तो हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं। हाँ, कौन से टाइप होते हैं? आई विल बी टीचिंग यू ऑल। हाँ, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो लोग उनका रिसेप्टर कहाँ पर होगा? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पे होगा। पर कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड सोल्यूबल हैं, वो लोग सेल के अंदर जा सकते हैं। तो सेल के अंदर जाके न्यूक्लियस में वो अपना एक्शन दिखाते हैं, तो उसे हम कहेंगे इंट्रासेल्यूलर। समझ में आया? समझ में आया? सेल मेम्ब्रेन एंड इंट्रासेल्यूलर, ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. Yes, ma'am. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक बार जो हार्मोन उसको रिसीव कर लेगा, ठीक है, जैसे अभी गोनाडोट्रोपिक का ही मैं बार बार एग्जांपल दूंगी आपको। जैसे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को रिसीव करने वाला कौन है? गोनाड्स है, मतलब जैसे टेस्टिस हो गया फॉर एग्जांपल। तो टेस्टिस ने इस हार्मोन को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन गया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, hormone receptor complex is formed, which produces the biochemical changes in the target tissue or the organ. Understood all of you? Next, अभी हम बात करेंगे कि कौन से हॉर्मोन्स है which can work through membrane itself। मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट था ना, हार्मोन बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स व्हिच में बी सेल मेम्ब्रेन। अभी हम सेल मेम्ब्रेन वाला पढ़ेंगे, फिर बाद में इंट्रासेल्युलर वाला पढ़ेंगे। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये सेल मेम्ब्रेन वाला है। सो मोड्स ऑफ एक्शन, हार्मोन एक्शन थ्रू द मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, देखो होगा क्या, कब होता है? कुछ हार्मोन्स जैसे कि कैटेकोलामाइंस, पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन्स, दे आर not lipid soluble, very important point, they are not lipid soluble। ये लोग लिपिड सोल्यूबल नहीं है। अगर ये लिपिड सोल्यूबल नहीं है बेटा, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते, सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या अपना सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है, और वो हर एक चीज को अंदर नहीं ले सकता। तो ये वाले जो कैटेगरीज के हार्मोन है, जैसे पेप्टाइड हार्मोन्स हो गया, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हो गया, कैटेकोलामाइंस हो गए, ये लोग नॉट लिपिड सोल्यूबल है, ये लोग फैट सोल्यूबल नहीं है। समझ में आ रहा है? और आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना है, याद है कि नहीं आपको? Yes. Yes. तो अगर ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना है, आपने फ्लूइड मोजाइक मॉडल में पढ़ा है वो, तो अगर ये हार्मोन्स नॉट लिपिड सोल्यूबल है तो ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो they are water soluble, so they cannot enter their target cell through the plasma membrane as it is having the lipid coating। कौन किसके पास लिपिड कोटिंग है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास लिपिड कोटिंग है। तो ये हार्मोन लिपिड सोल्यूबल नहीं है, ये हार्मोन वाटर सोल्यूबल है।
तो ये कहाँ तक रुक जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही रुक जाएंगे, मतलब अंदर नहीं जा पाएंगे, बाहर तक की दरवाजे पे ही रुक जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही रुक जाएंगे. So these hormones interact with the surface receptor. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो सरफेस है उसके ऊपर ही जो रिसेप्टर्स है उसी के साथ ये इंटरैक्ट करेंगे. And they will initiate the metabolic activities. Molecules of amino acids, peptide hormones bind to a specific receptor molecules which are located on the plasma membrane. Hormone receptor complex will be formed, है ना, भले सरफेस पे ही क्यों ना हो पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, which will cause the release of an enzyme, adenylate cyclase, from the receptor side. Again a very important enzyme, can be asked in the board exam for MCQ or 1 mark question. जब भी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज. कहां से, रिसेप्टर साइड से. This enzyme will form the cyclic AMP from ATP. AMP मतलब क्या होता है बेटा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. ATP का मतलब तो आपको मालूम ही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऑफ द सेल. अब ये जो cyclic AMP है will activate the enzymatic action. Hormone act as a first messenger and AMP will act as a second messenger. हार्मोन ने फर्स्ट मैसेंजर का काम किया, उसने एक एंजाइम को एक्टिवेट किया, एंजाइम के वजह से साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट हो गया, तो साइक्लिक एएमपी क्या हो गया, सेकंड मैसेंजर हो गया. एंड देन अदर मैसेंजर्स आर आल्सो लाइक कैल्शियम आयंस, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, IP3 एक्सेट्रा. अंडरस्टूड, यस और नो? तो Yes, ma'am. लेट अस सी विद दिस पार्ट. देखो तो एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे FSH हार्मोन जो है वो लिपिड सोल्यूबल नहीं है. कैसा है, वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल. इस डायग्राम से देखो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा बेटा कि ये वाला जो हार्मोन है FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे. अभी आपने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन लेसन पढ़ा है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में आपने पढ़ा था कि जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे. तो यहाँ पे ओवरी का एग्जांपल दिया गया फॉर एग्जांपल. तो समझो ये हार्मोन है, हाँ ये हार्मोन अंदर नहीं जा सकता. क्यों नहीं जा सकता ये हार्मोन अंदर, क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल नहीं है. तो ये यहाँ तक ही रुक गया. इसलिए रिसेप्टर ने देखो ये ऐसा स्क्वायर, ऐसा रेक्टेंगल शेप का, तो इसको रेक्टेंगल शेप का ही ऐसा रिसेप्टर्स है. तो ये क्या बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जिसके वजह से फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा, ये फर्स्ट रिस्पॉन्स हुआ. फिर सेकेंड रिस्पॉन्स में क्या होगा, साइक्लिक एएमपी होगा या फिर कैल्शियम आयंस के थ्रू होगा. फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस होगा, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होगा, और फिर ओवरी धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगा. समझ में आया? फिर ओवरी में क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा ही है कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स, है ना. समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? Yes. ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ऊपर वाला सेल मेम्ब्रेन वाला रिसेप्टर. अब हम बात करेंगे कि अंदर कैसे ये फॉर्म होता है. ठीक है, अभी देखो मोड ऑफ एक्शन थ्रू द इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. इंट्रा मतलब सेल के अंदर काम कर रहा है. अब सेल के अंदर अगर काम कर रहा है तो वी नो दैट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर डीएनए होता है, हाँ फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, है ना. समझ में आया? तो इंट्रासेल्युलर फिर में बहुत सारा चीजें आएगा. इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर चला गया, न्यूक्लियस के अंदर गया, न्यूक्लियस को स्टिमुलेट किया, न्यूक्लियस के स्टिमुलेट करने के बाद डीएनए स्टिमुलेट हुआ, फिर जो आपने 11th में पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, और फिर एक्शन स्टार्ट हो जाएगा. सो स्टेरॉइड एंड थायराइड हार्मोन्स आर लिपिड सोल्यूबल. लिपिड सोल्यूबल, अब आसान हो गया काम. लिपिड सोल्यूबल है तो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा सकता है. So steroid and thyroid hormones are lipid soluble, so they can easily pass through the plasma membrane of the target cell into the cytoplasm. एक बार साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया
तो वहां पे क्या होगा, दे विल बाइंड द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रोटीन फॉर्मिंग अगेन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। एक बार ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस में अंदर जाने के बाद वो डीएनए के ऊपर एक्शन स्टार्ट करेगा। डीएनए पे एक्शन स्टार्ट करते ही एमआरएनए आ जाएगा। एमआरएनए के बाद आपको पता ही है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, और फिर ऐसे प्रोटीन बनता है। प्रोटीन सिंथेसिस आपने पढ़ा है ना बेटा डिटेल में, यस और नो? Yes. Yes. तो ऐसे प्रोटीन बनेगा। फिर एक्शन ऑफ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स इज स्लो बट हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ठीक है, सो सी दिस विद द डायग्राम। तो जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, ईस्ट्रोजन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। यस, ईस्ट्रोजन देखो सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला गया। देखो आप देख सकते हो ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ना ये वाला, है ना? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम आप देख सकते हो, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये जो ग्रीन कलर का है ईस्ट्रोजन, ये अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद डीएनए पे काम किया, आरएनए पे काम किया, और फिर बहुत सारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस देखने के लिए मिले। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर संभालता है फीमेल में, तो टिश्यू ग्रो करेगा, डिफरेंशिएट होगा, ऑल दैट थिंग्स विल टेक प्लेस। अंडरस्टूड? Yes. सो बोथ द डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट, दोनों डायग्राम इम्पोर्टेंट हैं। You can just see with this diagram also, read it, you will understand. If you want, you can take a screenshot of this page, Bitam. So understood? Yes, understood this diagram. Yes, ma'am. Yes. Yes. Now, all these things you have already written. Okay. Now you can see that this is our pituitary gland. This is our pituitary gland. You can see how small it is. It is about pea-shaped. जो अपना ग्रीन पीस होता है ना बेटा, बस उतना ही बड़ा है, ग्रीन पीस जितना ही बड़ा अपना पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और अगर आपको उसका एग्जैक्ट पोजीशन देखना है, समझना है, तो अगर आप अपने टंग को ऊपर करोगे, टंग को ऊपर रोल करो, ऊपर रोल करो, पैलेट में जहां पे टच हो रहा है ना, उसके जस्ट ऊपर ही हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। मतलब एग्जैक्ट पोजीशन यू कैन सी, देखो ये अपना आईज है और आईज के इस साइड है। वैसे अगर अपने टंग को रोल करोगे तो यहाँ तक पहुंचेगा अपना टंग, तो उसके जस्ट ऊपर ही अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है। यस, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का खास बात क्या है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करता है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। So very important for the NEET exam also, hypothalamus. We have seen the hypothalamus region. हमने जब भी ब्रेन पढ़ा था, ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 ब्रेन में, हाँ, डायनसेफेलॉन रीजन में, 4 ब्रेन का डायनसेफेलॉन रीजन में 3 रीजन्स थे, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस, है ना? हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट था और एपिथैलेमस में पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट था, है ना? इफ यू रिमेम्बर द थिंग्स, एपिथैलेमस में पीनियल ग्लैंड था और हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड था। पिट्यूटरी ग्लैंड उल्टा था, उल्टा डाउनवर्ड प्रोजेक्टिंग स्टॉक था, जिसको हमने नाम भी पढ़ा था वहां पे, इनफंडिबुलम, या फिर उसको हम हाइपोफिजियल स्टॉक भी बोले थे।
हाँ, याद है कि नहीं कुछ? Yes, ma'am. ओके, नाउ हाइपोथैलेमस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अपना पूरा नर्वस सिस्टम ही एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। This we have already learned कि they are located at the floor of the diencephalon. It is making the floor of diencephalon. Roof was made by epithalamus and the side walls were made by the thalamus. They are maintaining the homeostasis. Homeostasis means अपना body को normal rhythm में रखता है. It controls the secretory activities of the pituitary gland. Yes, pituitary gland को control कौन करता है? Hypothalamus. और पिट्यूटरी ग्लैंड अभी आप पढ़ोगे कि कम से कम 6 से 7 हार्मोन्स रिलीज करता है। पर ये हार्मोन कब रिलीज करेगा? जब हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा तभी। ठीक है, सो इट इज कंट्रोलिंग द सिक्रीटरी एक्टिविटीज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। भले पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किया है, पर उसको भी कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है। इट सिक्रीट्स the releasing and inhibitory hormones or the factors. Hormones कोई factors भी बोला जाता है। Neurosecretory cells of the hypothalamus secretes neurohormones which are the peptide hormones. अपने हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, वो जो न्यूरो हार्मोन्स बनाते हैं, दे आर पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन के एग्जांपल आपने क्या लिखे थे? ADH, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, देन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सब नाम दिए गए हैं बेटा कि कौन से रिलीजिंग हार्मोन है और कौन से इनहिबिटरी हार्मोन्स है। सो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये किसको स्टिमुलेट करता है? इट विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ACTH, दैट इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करने वाला है ना, तो किसको स्टिमुलेट करेगा? TSH को स्टिमुलेट करेगा बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। Gonadotropin releasing hormone, again it will stimulate the pituitary to secrete the gonadotropin. Prolactin inhibiting hormone, it will inhibit the prolactin release by the pituitary gland. Somatostatin, it will inhibit है, ये भी inhibit वाला है, inhibit the release of growth hormone. Somatotropin, satin है तो इनहिबिशन है, ट्रोपिन है तो रिलीजिंग है, इट विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड, रिलीजिंग है नाम से ही पता चल रहा है, जो रिलीज करवाएगा। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक में, एंड GIP मतलब इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चा? यू विल बी मेकिंग 2 कॉलम्स, सो राइट डाउन ऑल ऑफ यू put a heading as releasing or inhibitory factors of hypothalamus. Put a heading, make 2 columns. एक साइड आप लिखोगे रिलीजिंग फैक्टर, दूसरे साइड लिखोगे इनहिबिटिंग फैक्टर्स। एक साइड लिखोगे रिलीजिंग, दूसरे साइड लिखोगे इनहिबिटरी। इतना लिख के हो जाएगा तो लेट मी नो, फिर आई विल टेल यू। At one side write down releasing factors, other side write down inhibiting factors. हेडिंग तो आपने डाला ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस। Yes. चलो, रिलीजिंग में नंबर 1 लिखो। रिलीजिंग में फर्स्ट वाला हार्मोन का नाम लिखो, एड्रीनो ग्लैंड किधर होता है बेटा? एड्रीनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, सो ये सब हार्मोन्स पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, जो कि एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे टू सिक्रीट समथिंग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये जो हार्मोन्स हैं
ये निकल तो रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, पर इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिन का टारगेट ऑर्गन कौन रहेगा? एड्रिनल ग्लैंड ऑफ अवर किडनी। ठीक है, सो अभी इसके लिए सिर्फ क्या लिखोगे? राइट ऑन द फर्स्ट नेम एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। उसमें लिखो इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ACTH. It stimulates the release of ACTH by anterior pituitary gland. It stimulates the release of ACTH. ACTH मतलब ही adrenocorticotrophine hormone. It stimulates the release of ACTH by anterior pituitary gland. चलो रिलीज में दूसरा पॉइंट लिखो, रिलीजिंग फैक्टर में सेकंड पॉइंट। सी द स्पेलिंग फ्रॉम द स्क्रीन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। Again put a dash and write down it stimulates the release of TSH. It stimulates the release of TSH. TSH मतलब thyroid stimulating hormone. It stimulates the release of TSH by anterior pituitary gland. It stimulates the release of TSH by anterior pituitary gland. Number 3 लिखो. See the screen and write down number 3. Gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone. इसको आप एब्रीवेशन चाहिए तो कर भी सकते हो, कैपिटल G, स्मॉल n, कैपिटल R, कैपिटल H. GN मतलब गोनाडोट्रोपिन और RH मतलब रिलीजिंग हार्मोन. Put a dash and write down. It stimulates pituitary. It stimulates pituitary to secrete gonadotropins. It stimulates pituitary to secrete या to release gonadotropins. Next number 4 डालो. नंबर 4 में डालो सोमैटोट्रोपिन. ट्रोपिन ट्रोपिन लास्ट से थर्ड नंबर पे. सोमैटोट्रोपिन. Put a dash and write down stimulate the release of growth hormone. Stimulate the release of growth hormone. नेक्स्ट लिखो रिलीजिंग में नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट नंबर गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड GRP. गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड GRP. Put a dash and write down stimulate the release of gastric juice. Stimulate the release of gastric juice. Done this much? Yes. अब इनहिबिटिंग में फर्स्ट वाला पॉइंट लिखो. इनहिबिटिंग में फर्स्ट वाला कौन सा लिखोगे? प्रोलैक्टिन.
इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन से दूध सिक्रीट होता है। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क सिक्रीशन प्रोलैक्टिन से ही होता है। सो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये याद रखो बेटा, कहीं पे भी अगर वर्ड सैटिन है, सैटिन सैटिन है मतलब इनहिबिशन होता है। हाँ, ये आपको सिंपल रहेगा समझने के लिए बाद में भी। सैटिन अगर वर्ड लिखा है कोई हार्मोन के सामने मतलब इनहिबिशन होता है। सो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को आप एक और नाम से लिख सकते हो, प्रोलैक्टोस्टैटिन, प्रोलैक्टोस्टैटिन। स्टैटिन बोला मतलब इनहिबिशन, prolactostatin. So put a dash and write down, it inhibits the prolactin release. Inhibits मतलब रोकता है, it inhibits the prolactin release by anterior pituitary gland. It inhibits the prolactin release by anterior pituitary gland. Next, सोमैटोस्टैटिन। सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। सोमा का मतलब बॉडी, स्टैटिन मतलब इनहिबिशन, मतलब बॉडी सेल्स को इनहिबिट करने वाला। ठीक है, सो सोमैटोस्टैटिन, it inhibits the release of growth hormone. Growth hormone is the body hormone, body cells का growth रुकाता है। So it inhibits the release of growth hormone. It inhibits the release of growth hormone. Last one, write down gastrin inhibitory polypeptide, GIP. गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन को आप गैस्ट्रिक भी लिख सकते हो, दोनों भी राइट होता है। गैस्ट्रिन को गैस्ट्रिक भी लिखा जाता है, गैस्ट्रिक का मतलब ही होता है स्टमक। इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, what it will do, it will inhibit the release of gastric juice. It will inhibit the release of gastric juice. So ऐसे ही बन गया बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। जो भी रिलीजिंग वाले साइड है वो लोग पॉजिटिव फीडबैक है, जो भी इनहिबिटिंग वाले साइड है वो नेगेटिव फीडबैक है। लिखा इतना सबने? Yes. Yes. ठीक है, तो ये आपको याद करके रखना है बिकॉज आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है। Okay, now with that I will be teaching you this hypophyseal portal system. आपको याद है हमने 11th में पोर्टल सिस्टम पढ़ा था? Do you remember पोर्टल सिस्टम? मैंने आपको कौन सा पोर्टल सिस्टम बताया था, याद है आपको? 11th में बताया था कि 12th में बताया था? Hepatic portal system. शाबाश, hepatic portal system. What do you mean by that बेटा? Ma'am, hepatic portal vein. क्या बेटा? Hepatic portal vein मतलब ब्लड हार्ट में जाने से पहले डाइजेस्ट इंटेस्टाइन से लेके लीवर को देता है मतलब। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सो पोर्ट का मतलब जहां पे एक जगह रुकता है, पोर्ट का मतलब ही होता है ना कोई एक जगह रुकता है। ठीक है, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में दो पोर्टल सिस्टम है, एक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम और एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एक और पोर्टल सिस्टम होता है जिसे हम रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में नहीं है, वो फ्रॉग वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, सो ह्यूमन बॉडी में दो ही पोर्ट्स हैं,
एक हाइपोफिजियल और एक हेपैटिक। हेपैटिक का मतलब है लिवर। हेपैटिक में आपने क्या पढ़ा था बेटा, वो मैं बताऊंगी तो आपको ये समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा था, देखो जो भी आप फूड खाते हो वो कॉम्प्लेक्स खाते हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद वो सिंपल में बदल गया। अब ये जो सिंपल फूड है वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन में डायरेक्टली नहीं जाएगा, क्योंकि इस जो सर्कुलेशन में, जैसे आपने बहुत ज्यादा स्वीट्स खाया तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज बन गया, किसी दिन आपने बहुत ज्यादा प्रोटीन खा लिया, बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड बन गया। तो ऐसे ही अगर ये बहुत ज्यादा ग्लूकोज, बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड अगर हमारे ब्लड में सर्कुलेशन में चला जाएगा तो हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल तो एकदम हाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस। तो उसको रेगुलेट करके ब्लड में रिलीज करना जरूरी है, उसको रेगुलेट करके ब्लड में रिलीज करना जरूरी है। इसीलिए हमारे पास हेपैटिक है, लिवर है। तो इंटेस्टाइन में भले आपने किसी दिन ज्यादा शुगर खा लिया, या किसी दिन आपको बहुत पसंद आ गया, आपने इतना पनीर खा लिया, इतना पल्सेस खा लिया, या इतना एग खा लिया, इतना प्रोटीन भी खा लिया, या कभी कभी आपने बहुत ज्यादा शुगर खा लिया, हाँ, तो भी ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना है, जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड बना है, ये पहले लिवर में फिल्टर होगा, लिवर में उसका काट छाट होगा और फिर वो ब्लड में रिलीज किया जाएगा, ताकि हमारे ब्लड का पीएच ना बढ़े, ताकि हमारे ब्लड का पीएच इम्बैलेंस ना हो सके। ठीक है, इसीलिए ये हेपैटिक है हमारे पास। तो जब ये लिवर में जाएगा तो जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारे बॉडी के अलावा भी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे लिवर स्टोर कर देगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड बना है उसको यूरिया बना देगा और एक्सक्रीशन करवा देगा। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ बेटा आपको? यस। यस मैम। तो इसीलिए ये पोर्टल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हमारे पास हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है। Now see, this system carries various hormones secreted by the hypothalamus to the pituitary gland. क्या है, वापस पढ़ो। ये जो सिस्टम है ये बहुत सारे हॉर्मोन्स क्या करते हैं, वेरियस हार्मोन कैरीज वेरियस हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पोर्टल वेन है, it collects the blood from various parts of the hypothalamus and open into the anterior lobe of pituitary and then finally to the superior vena cava. समझा? यस। तो ये जो भी हॉर्मोन्स है उसका पहले एक पोर्ट में जाएगा, वो पोर्ट कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का कहां पर जाएगा? एंटीरियर लोब में, और फिर उसके बाद सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट में जाएगा, है ना? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ही तो हमारे हार्ट में जाता है ना। इट इज कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम ऑफ अवर हार्ट। यस। सो पिट्यूटरी ग्लैंड और द पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिजियल भी कहते हैं, इसलिए हम इसको हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस या हाइपोफिजियल ग्लैंड भी कहते हैं। सो इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, अटैच्ड बाय अ स्टॉक कॉल्ड एज अ हाइपोफिजियल स्टॉक, या फिर आप उसको इन्फेंडिबुलम भी बोल सकते हो। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक बोनी डिप्रेशन के अंदर प्रेजेंट है, जिसे हम सेला टर्सिका बोलते हैं, of the sphenoid bone. Okay, it is very small, pea-size, reddish gray color gland. It has two lobes, anterior lobe and posterior lobe. They can see two lobes. ये वाला side is the anterior lobe, ये वाला side is the posterior lobe, and you can see the hypophyseal portal system over here formation. तो हाइपोथैलेमस से जो भी हॉर्मोन्स होएगा वो पहले यहाँ पे उसका पोर्ट बनेगा और फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज किया जाएगा। समझ में आया? Yes. तो अब देखो इसके अंदर भी दो फर्क है, आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है इस दोनों लोब में? कैन यू आइडेंटिफाई विद दिस डायग्राम एनी डिफरेंसेस यू कैन सी? एंटीरियर और पोस्टीरियर में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है बेटा? कुछ फर्क है एंटीरियर और पोस्टीरियर में? स्ट्रक्चर वाइज आप लेबलिंग पे मत जाओ, स्ट्रक्चर वाइज आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या? एंटीरियर में, अच्छा ठीक है मैं बता देती हूँ, एंटीरियर में आपको सेल 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 जैसे दिख रहा है कि नहीं? सेल Yes. दिख रहा है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस दिख रहा है, जबकि यहाँ पे कोई सेल और न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है।
ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीटरी सेल्स है, सिक्रीटरी सेल्स है जो कि बहुत सारे हार्मोन्स बनाते हैं, जबकि पोस्टीरियर साइड में कोई सिक्रीटरी सेल्स नहीं है। ये सिर्फ स्टोरेज एरिया है फॉर द हाइपोथैलेमिक हार्मोन। जब भी जरूरत पड़ेगा ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा और यहाँ पे इसको सिर्फ स्टोर किया जाएगा। अब समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। ये हाइपोथैलेमस है, जब भी यहाँ पे दो हार्मोन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं। देखो अभी आपने पहले भी पढ़ा था यहाँ पे, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स न्यूरो हार्मोन। कौन? हाइपोथैलेमस का न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, हाइपोथैलेमस का न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स न्यूरो हार्मोन बनाता है। न्यूरो हार्मोन मतलब जो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। और वो कौन से दो हार्मोन है? एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ बेटा? दिट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन यहाँ पे सिक्रीट करेगा और यहाँ पे स्टोर होगा, और जब भी जरूरत है ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जब भी जरूरत है एडीएच रिलीज होगा। पर एंटीरियर में ऐसा नहीं है, एंटीरियर खुद ही बनाता है हार्मोन्स, क्योंकि इसके पास खुद के पास सिक्रीटरी सेल्स है। समझ में आया? ठीक है, Yes. एंटीरियर खुद बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड खुद बनाता है क्योंकि उसके खुद के पास सिक्रीटरी सेल्स है। जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। जो पोस्टीरियर पार्ट है वो सिर्फ स्टोरिंग का काम करता है। उसको देता कौन है हार्मोन? ये हाइपोथैलेमस देता है, विद द किसके डिमांड पे? न्यूरो हार्मोन। न्यूरो हार्मोन क्यों मैं बोल रही हूँ, मैं क्यों नहीं उसको एंडोक्राइन हार्मोन बोल रही हूँ? न्यूरो हार्मोन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन का पार्ट है। समझ में आ रहा है? यस, मैं इसे न्यूरो हार्मोन इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम, और एडिनोहाइपोफाइसिस से मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन रिलीज होंगे, अब मैं उसे एंडोक्राइन हार्मोन बोलूंगी। अंडरस्टूड द डिफरेंस? ठीक है, सो देयर आर टू लोब्स, सो आई विल नॉट डिस्कस द टू लोब्स टुडे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही जानो कि दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अगर आपको नाम चाहिए तो उसका दूसरा लिख लो, एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस का मतलब पिट्यूटरी होता है और एडिनो का मतलब होता है एंटीरियर। एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को नाम दिया गया है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से इसके सारे हार्मोन आ रहे हैं ना, इसलिए नाम ही वैसा दे दिया गया है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। So posterior pituitary is neurohypophysis and anterior pituitary is adenohypophysis. Adenohypophysis. समझा बच्चा? यस मैम। I will be teaching you only this much for today. Just have a revision, recap, whatever we have learned today. So we have started with the chemical coordination, that is hormonal coordination. So in this lesson, you are going to learn about the hormones. There are different types of chemical signals. Autocrine मतलब सेल जब खुद को स्टिमुलेट करता है, एंडोक्राइन मतलब डिस्टेंट ऑर्गन, डिस्टेंट सेल को स्टिमुलेट करता है, पैराक्राइन मतलब बाजू वाले को, सेल को, और फेरोमोन्स मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, फेरोमोन्स में एज आई टोल्ड यू दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि एंट हो गया, हनी बीज हो गए। ठीक है, ज्यादा करके एनिमल्स में, जो छोटे एनिमल्स है उनके अंदर ये ज्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में है। ह्यूमन बीइंग में इतना ज्यादा नहीं है, बट यू कैन से दैट थोड़ा बहुत है।
what I can say, pheromones are only for means okay, I will tell you, pheromones in case of human beings, they are not so well developed. ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि it is not so well developed in human beings. अगर आप but the latest studies have told that कि pheromones are secreted in the nose. ठीक है, nasal chambers में secrete होता है. So as we know that हमारा olfactory lobe ज्यादा well developed नहीं है, हमारा sense of smell इतना well developed नहीं है. But pheromones are secreted which can be smelled, but as our olfactory lobe is not so well developed, so इतना ज्यादा इसका importance नहीं है. We are having more importance of this endocrine system. But no doubt pheromones also has its role for the opposite sex attraction. ठीक है, so sweat gland of a male secretes some hormones, ठीक है, which can be smelled by the female for the sexual relationship. Understood? ठीक है, so for the attraction, for the sexual relationship, these pheromones work a little bit. Okay, now so chemical coordination में we have seen about the Dactylus gland or the endocrine gland. You have learned the different types of hormone or the nature of the hormone. ठीक है, कुछ अमाइंस है, कुछ पेप्टाइड्स है, ये आपको रट्टाफाई करना है और आप मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में बोल के दिखाओगे ये सब. हाँ, ये आपको फुल रट्टाफाई करके दिखाना है. फिर हमने हार्मोन के एक्शन पढ़े सेल के ऊपर और सेल के अंदर. ठीक है, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स, आपने उसके नाम लिखे हैं, ये हम सब इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. फिर हमने हाइपोथैलेमस से शुरुआत की, उसके ये भी आप मुझे रट्टाफाई करके नेक्स्ट लेक्चर में सुनाओगे. इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा है और रिलीजिंग हार्मोन कौन सा है, दैट दिस आल्सो यू आर गोइंग टू रट्टाफाई एंड टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास. फिर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड की जो शुरुआत की है, आई विल बी टीचिंग यू अगेन वंस अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर को हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं. ठीक है, so again I will be teaching you in detail about this pituitary gland in the next class. ठीक है, is that very clear to all of you? Yes, ma'am. So please try to learn in your textbook. एक बार पढ़ने का